Hello students, today we are going to start our chapter number 6, Measurement and Motions revision work. This assignment you have to do in your notebooks, class or copies. Let's start. Question number 1 is, what kind of motion a bullet shows when it is fired from a gun? जब आप गन से बुलेट फायर करते हो तो किस तरह की मोशन होती है? ऑप्शंस आर गिवन: linear, translatory, random, non-periodic. Your right answer is translatory motion. It is like a rectilinear motion, straight line में जब कोई चीज object move करता है, that is your translatory motion. Question number 2, to and fro motion movement of the body is termed as. जब कभी कोई body to and fro move करती है, to and fro आई होप आपको याद होगा, सेंटर पॉइंट से जब सेम डिस्टेंस राइट और सेम डिस्टेंस वो फिर लेफ्ट उतना ही डिस्टेंस कवर करती है, देन इट कम्स बैक अगेन टू इट्स सेंटर पॉइंट एंड मूव्स टूवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट अगेन. दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन. इसमें एग्जाम्पल इसकी मोशन को एग्जैक्टली क्या कहा जाता है? पीरियोडिक, वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी, सर्कुलर या एंड पीरियोडिक? योर आंसर इज ऑसिलेटरी मोशन. सो वील हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. बी क्विक, आंसर द क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शंस ऑल्सो. व्हेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग अ फिक्स पाथ विथ चेंजिंग डायरेक्शन. जब किसी फिक्स पाथ पे मोशन नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन. इस तरह की मोशन जब कभी एक फिक्स पाथ नहीं है उसको हम बोलेंगे रैंडम मोशन. क्वेश्चन नंबर 4, रिया वांटेड टू मेजर द लेंथ ऑफ हर साइंस कॉपी. When she took a scale, she found that the end of the scale was worn out. Worn out means broken. It was torn. So, between 1 centimeter and 2 centimeter. If she starts the measuring from 3 centimeters and the other end of the copy is at 14.8 centimeter, what is the actual length of the copy? You have to tell the actual length of the copy. If she starts from 3 centimeter. जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जो उसकी एंड दिया होता है वहाँ से आपको सपोजिंगली 14.8 आ रहा था उसका मेजरमेंट, तो उसमें से आपका जहाँ से आपने स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मेजर कर देना है. यानी कि उन्होंने 3 से स्टार्ट किया था तो 14.8 में से 3 आप माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज 11.8 सेंटीमीटर. Question number 5. Name the physical quantity used for measuring long jump. Also specify the SI unit. Meter is the physical quantity used for measuring the long jump. A complete metric system of unit of measurement of for the scientist is called SI unit. So I hope you are getting the answers. The next question is, identify the different types of motion. अलग अलग तरह की motions को identify कीजिए. You have to name them. The different types of motions are rectilinear motion, curvilinear motion, rotatory motion, non-periodic motion, oscillatory motion, vibratory motion, translatory motion. Question number 7. Same object must be regarded at a rest by an observer and at a motion by another observer. Justify the statement with the help of example. Sometimes when you see someone, you say that person is at rest and the other says that it is on motion. How does this happen? Example आपके सामने है. जब आप ट्रेन में मूव कर रहे होते हो तो जो पैसेंजर है वो
अगर सीट पे बैठा हुआ है तो वो बोलेगा कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, और जो लोग उसे बाहर से, ट्रेन के बाहर से देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि वो मूव कर रहा है, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। सो दिस इज़ द एग्जांपल कि हमारे जो जो व्यू कर रहे हैं हम, जिस पोजीशन पे खड़े होकर, उस पे डिपेंड करता है हमारी कि हमें सामने चीज़ मूव करती हुई दिखेगी या रेस्ट पे दिखेगी। इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट a passenger appears at rest to the person sitting in the train, but the passenger appears to be in motion to the person standing on the platform or the road observing the train. So this is one of the interesting questions and important as well. Now here are some questions given below. Identify different types of motions फ्रॉम द वर्ड डायग्राम। यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपने करेक्ट करना है। तो फर्स्ट वन जो है वो आपका है, इट इज़, इफ़ यू find out the answers, it will come out to be rectilinear motion. Second number is your oscillatory. Third is your periodic. Fourth is your revolutionary. मैं क्वेश्चंस को बोल्ड कर रही हूँ जिससे आपको कॉपी करने में इजी हो। फिफ्थ वन इज़ योर रोटेशनल मोशन। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज शोन बाय द फॉलोइंग? द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज शोइंग पीरियोडिक मोशन। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, rectilinear motion. Pendulum of a wall clock, oscillatory motion. Water dripping from a tap, periodic motion. Beating of heartbeat, periodic motion. Motion of earth from around the sun is your circular motion. Motion of the blade of an electric fan, rotatory motion. Tabla being played is periodic motion. Then spinning of this one is your tabla being played is your non-periodic motion. Tabla being played is your non, because when we give beats on tabla, they can change, they don't remain the same. टाइम पीरियड जो है उनमें सेम नहीं रहता, तो वो नॉन पीरियोडिक में आएगा। स्पिनिंग ऑफ अ टॉप इज अ सर्कुलर मोशन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन का, जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया उसी का रिवर्स है एक तरह से ये। उसमें हमने मोशन बताया था और हमने एग्जाम्पल बताया था और मोशन बताना था। इसमें हमने मोशन बताया और एग्जाम्पल पूछा गया आपसे। रेक्टिलिनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 1, परेड ऑफ एन आर्मी, फॉलिंग ऑफ अ ट्री। ये जो है दोनों रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ साइकिल ऑन द रोड, रोलिंग ऑफ अ बॉल। पीरियोडिक मोशन, अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ अ अर्थ अराउंड द सन। नेक्स्ट लास्ट है आपका द ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, मूवमेंट ऑफ द स्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई फुट और अ हैंड नॉट यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। जब आप हाथ से किसी चीज़ को मेजर करते हो तो उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं आ सकती। मोर ओवर जो आपका पार्टनर होगा या जो आप दूसरा पर्सन कोई भी होगा, उसके हैंड की मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है मेजर करने का। इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ हैंड स्पैन और फुट। क्वेश्चन नंबर नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा, नंबरिंग थोड़ा डिफरेंट हो गई है। डिफाइन द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन। पीरियोडिक मोशन को डिफाइन करना है। मोशन ऑफ एन
is said to be periodic if it repeats itself after a regular time interval. For example, motion of a हैंड्स ऑफ क्लॉक. हमेशा एक एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहिए अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए. द टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. एग्जाम्पल, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम. स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम जो है वो एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है. लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन फोर्स. ऑल्सो स्टेट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स क्या होता है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल अप्लाई करते हो उसे हम फोर्स कहते हैं. और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जब हम आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं. तो ये सभी जो हैं ये इफ़ेक्ट्स हैं फोर्स के, ये आपको आने चाहिए. लेट्स फिनिश द वर्क.